Hi everyone, this is Ankita Kabra and again I welcome you all to the class. So हम पढ़ रहे थे aldehyde ketones, right? So today we are going to start physical properties of aldehyde and ketones, okay? So now as we all know that aldehyde or ketones में there is a carbonyl group, okay? Such type of carbonyl group is present. So इसमें क्या होता है, the oxygen which is present, which is also known as carbonyl oxygen, is much more electronegative than your carbon. ठीक है, here you can see the electronegativity of oxygen is 3.5 and that of carbon is 2.5. Okay, so oxygen is more electronegative than carbon. So what this oxygen will do, oxygen will attract this electron pair from the double bond towards itself, right? And it acquire partial negative charge and carbon acquire partial positive charge, right? So that indicates the carbonyl group which is present in your aldehyde and ketone is polar, right? The group is polar group. So now this polar compounds, aldehyde and ketones are also known as polar compounds because the carbonyl group is polar. Okay, so they have dipole-dipole interaction between them. They have dipole-dipole interaction between them. Okay, let me show you which kind of dipole-dipole interaction is there. Okay, so this is your carbon and this is your oxygen over here. Oxygen is negatively charged, right? मतलब पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन जो है वो आपका पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे दूसरी जगह देयर इज ऑक्सीजन which is partial negative and here it is your carbonyl carbon. Okay, so इसमें क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन जो आपके पहले कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट है, it is having a attraction with this positively charged carbon. Okay, and this oxygen having attraction with this positively charged carbon. So इसको बोलते हैं dipole dipole interaction. Two opposite charges are attracting towards each other. Okay, so इस तरह के attractions present होते हैं in aldehyde and ketones. Okay, now what are उनके boiling points कैसे है, solubility कैसी है, that all we have to see. Now ये जो है ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर aldehydes. Okay, for carbonyl compound specifically we will say. Okay, so ये आपको याद रखना है. Fine. So next is boiling point of aldehyde and ketones. So aldehyde and ketones have dipole-dipole interaction between them, as I show you, right? See, ये एक carbonyl group है, ये दूसरा carbonyl group है. The negatively charged oxygen of this carbonyl group is having interaction with this positively charged carbon of another carbonyl compound. Okay. उसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ इंटरैक्टेड है, मतलब अट्रैक्शन है. ओके, सो इस वजह से इस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन के वजह से दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स एंड इथर्स. ओके, because of this dipole dipole interaction, aldehyde and ketones have higher boiling points than alkanes and ether, but they have lower boiling points than alcohols. They have lower boiling points than alcohols. ये चीज याद रखना, because in case of alcohol, alcohol में ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, right? In this way, so there is intermolecular hydrogen bonding, है ना. ये हमने देखा था अल्कोहल वाले केस में कि वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और इसी वजह से अल्डेहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है देन अल्कोहल्स. इफ वी टॉक अबाउट द इंटरैक्शन कि कौन सा इंटरैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, उसके बाद होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन. ओके, डायपोल डायपोल, और उसके बाद होता है वंडरवॉल फोर्सेस. उसके बाद कौन सा होता है, वंडरवॉल फोर्सेस, जो अल्केन्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है. मतलब
बॉन्ड के केस में कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. सो एक चीज याद रखना, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स और ईथर से ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है, बिकॉज देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्डिहाइड कीटोन में नहीं होती है. ठीक है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. Okay, so what about the solubility of aldehyde and ketones? Solubility, whether they are soluble or not? So yes, they are soluble. मतलब lower aldehydes and ketones are soluble. 1 to 4 कार्बन जिसमें प्रेजेंट है वो सोल्यूबल होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होते जाएगी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है ना, विच इज नॉट पोलर, विच इज नॉट पोलर, राइट. तो उसके वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी नहीं, तो इसके वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी. Low molecular weight aldehyde and ketones are soluble, but as the molecular mass increases, solubility decreases. उसी तरीके से जैसे जैसे molecular mass increase होता है तो boiling point भी बढ़ता है in case of aldehyde and ketone. As the molecular mass increases, boiling point increases, but as the molecular mass increases, solubility decreases. Okay. Next, so फिर अभी ये बनता कैसे है, तो ये देखिए, this is your water molecule. ठीक है, दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल. जो रेड कलर का है दिस इज योर ऑक्सीजन, और जो व्हाइट कलर का है दिस इज योर हाइड्रोजन. ओके, एंड दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड. जो ब्लैक कलर का है दिस इज कार्बन एटम, और जो रेड कलर का है दिस इज ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो दिस ऑक्सीजन एटम कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट. इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, राइट. सो ये हाइड्रोजन कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल का है. तो इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ कीटोन एंड इन केस ऑफ अल्डेहाइड्स. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ एसिटाल्डेहाइड. ठीक है, एंड दिस इज इन केस ऑफ एसीटोन. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एसीटोन है. ओके, सो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर between the carbonyl oxygen and hydrogen atom of water. That's why the compound is soluble in water. ठीक है, but as the mass increases मतलब क्या बढ़ेगा, consider ये आपका ग्रुप है, this is your polar group, right, double bond O and this is your H. तो यही पार्ट बढ़ेगा ना, ये पार्ट बढ़ेगा, and this part is non polar part. तो अगर ये बढ़ेगा तो solubility decrease होगी, right. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा अबाउट द नेचर एंड स्मेल, दैट इज इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्माल्डिहाइड. अगर हम फॉर्माल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्माल्डिहाइड इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर. ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, मिथानल. ओके, एंड 40% aqueous solution of this formaldehyde, 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin. इसको क्या बोलते हैं, formalin. और ये कहाँ पे यूज होता है, this is used to store biological specimen. ठीक है, आपने बायोलॉजी की लैब वगैरह में देखा होगा जो स्टार फिश होती है या फिर जो बाकी के जो ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है और उसमें एक लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज फॉर्मेलिन. ठीक है, एंड व्हाट इज फॉर्मेलिन, इट इज 40% aqueous solution of formaldehyde. ठीक है, नाउ acetaldehyde, what about acetaldehyde, what about ethanol? So ethanol is a liquid, colorless liquid होता है at room temperature. okay, और वो extremely volatile है, बहुत ज्यादा volatile है. ठीक है, it have a pleasant odor, odor काफी pleasant होता है उसका. इफ वी टॉक अबाउट कीटोन एसीटोन की अगर हम बात करें तो अगेन दैट इज अ लिक्विड, प्लीजेंट ओडर होता है एसीटोन का भी. ठीक है, बट जब हम हाइयर कीटोन्स की बात करते हैं, हाइयर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो वो सॉलिड भी हो सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियली आपको ये कैसे मिलते हैं फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, सो ये टेट्रामर और ट्राइमर केस में मिलते हैं. तो दैट इज जस्ट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया है, नो नीड टू गो इन दैट डीप. ओके, तो कमर्शियली ये उस तरीके से अवेलेबल है टेट्रामर एंड ट्राइमर के केस में. जो फॉर्माल्डिहाइड है दैट इज इन ऑक्सरीन. ओके,
in the form of oxygen. So I hope this much is clear. Solubility समझ में आ गई आप सबको, boiling point समझ में आ गया. I hope this much is clear. Okay. So now here's a question. Arrange the following compounds in the increasing order of their boiling points. ठीक है? So ये देखिए, this is one aldehyde. Okay, कौन सा aldehyde है ये? Butanol is there. Okay. This is your alcohol, this is your ether, and this is your alkane. So किसका boiling point सबसे कम होगा? Alkane का, right? So this is on number 1. उसके बाद किसका होगा? Then ether, right? उसके बाद aldehyde या alcohol? Aldehyde, क्योंकि हमने पहले ही बोला है जो alcohol है उसका boiling point ज्यादा होता है किससे? Aldehyde और ketone से. So this is your order. सबसे पहले क्या आएगा? अल्केन आएगा, मतलब अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, राइट? उसके बाद क्या आएगा? इथर आएगा. उसके बाद आएगा आपका अल्डेहाइड, राइट? उसके बाद आएगा आपका कीटोन. उसके बाद आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर. सो सबसे ज्यादा किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर कीटोन, फिर अल्डेहाइड, फिर इथर, फिर अल्केन. सॉरी, ये कीटोन के बाद ना यहाँ पे वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम अल्कोहल लिखते थे पहले. हियर इट इज अल्कोहल एंड देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, छोटे से बड़ा, इसलिए हम अल्केन इथर इस अकॉर्डिंगली नंबर देंगे. सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस तरीके से पूछा गया है. ओके, नेक्स्ट इज पेंटेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन, ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल. तो पहले किसका आएगा? मिथॉक्सीमीथेन, राइट, नंबर 1. देन इट इज ब्यूटानॉल. ओके, देन इट इज पेंटानॉल, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, राइट? एंड देन देयर इज अल्कोहल. सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज रिमेंबर किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है नहीं है. ओके, अकॉर्डिंग टू द विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज प्रेजेंट ओवर देयर, उसके बेसिस पे हम सारे ये अलॉट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी ऑफ aldehydes and ketones. How reactive aldehyde and ketones are. Okay, so reactivity of aldehyde and ketone is due to polarity of that carbonyl group, जो हम already देख चुके हैं कि जो carbonyl group है that is polar group. Okay, because electronegative ऑक्सीजन है और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, राइट? सो इसमें क्या हो गया? बॉन्ड पोलर हो चुका है, राइट? तो अभी ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन है इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जी हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. किस पे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करेगा. ओके, तो जब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन दैट कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल. सो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव. ओके, बट नाउ वी हैव टू सी व्हिच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. सो अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव than ketones towards nucleophilic attack. Why this is so? Why aldehydes are more reactive towards nucleophilic attack than ketones? ये अभी हमको देखना है. Okay, तो let me take a screen to explain this to you. Okay. अच्छा, कीटोन्स में क्या होता है? कीटोन में दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट? कीटोन का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, है ना? दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. और अल्डेहाइड में क्या होता है? एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो अल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं? अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना? ये देखो, ये इसके पास जाएगा, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. ओके, सेम चीज यहाँ पे होगी, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव. तो अभी देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास
in case of aldehyde, you have one alkyl group over there. ठीक है, आपके पास एक अल्किल ग्रुप है, तो ये एक अल्किल ग्रुप क्या करेगा, ये एक अल्किल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके अल्किल ग्रुप से आ रहा है, राइट एक अल्किल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसकी पोलैरिटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, राइट उसकी पोलैरिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किससे, अल्किल ग्रुप से. इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन के केस में क्या होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा, देयर आर टू अल्किल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, किसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन को, राइट और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे टू द कार्बन, तो इसका ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट ये कम हो जाएगा, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर पोलैरिटी डिक्रीज हुई तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो किस पे अटैक करने वाला था, ये अटैक करने वाला था कार्बन पे. क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रीच है, राइट तो अगर इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो गई, राइट तो ये अटैक करेगा कि यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए ना, और इसका पॉजिटिव सेंटर डिक्रीज हो चुका है, राइट इसका भी पॉजिटिव सेंटर डिक्रीज हुआ है, लेकिन कंपैरिजन में किसका ज्यादा डिक्रीज हुआ है, कीटोन का ज्यादा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप उसको डोनेट कर रहे हैं, राइट यहाँ पे सिर्फ एक अल्किल ग्रुप डोनेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा, कौन से कार्बन पे जल्दी अटैक करेगा, टू दिस कार्बन, ओके टू दिस कार्बन, क्योंकि इसकी पोलैरिटी इतनी डिक्रीज नहीं हुई है जितनी इसकी डिक्रीज हुई है. आई चीज समझ में, आई होप दिस मच इज क्लियर. तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ओके इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट इज हैपनिंग, electronically in case of ketone there are two alkyl groups which can donate its electron to the electrophilic carbon leading to the decrease in polarity, okay और जितनी पोलैरिटी कम होगी उतना न्यूक्लियोफिलिक कम अटैक करेगा, राइट पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ओके पॉजिटिव सेंटर होना चाहिए. अगर वो पॉजिटिव सेंटर है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसको दो दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो उसका तो वो जो डिफिशिएंट था वो तो कंप्लीट हो गया ना, तो अभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या, करेगा बट कम अमाउंट में करेगा, राइट इट विल रेडीली अटैक टू दिस कार्बन, अल्डेहाइडिक वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वहां पे जल्दी अटैक करेगा, ठीक है. नेक्स्ट रीजन इज स्टेरिक रीजन. स्टेरिक रीजन का क्या है, फिर से सेम रीजन है कि अल्डेहाइड में एक अल्किल ग्रुप है, ओके और कीटोन्स में दो अल्किल ग्रुप है, मतलब दो बल्की ग्रुप है, ठीक है यहाँ पे दो बड़े बड़े ग्रुप है, तो अगर इस कार्बन पे दो बड़े बड़े ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दे विल क्रिएट अ हिंड्रेंस फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ये इस न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक नहीं करने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी दो बड़े बड़े ग्रुप उस कार्बन पे प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह मिलेगी क्या आके अटैक करने के लिए, नहीं मिलेगी ना, राइट इन केस ऑफ अल्डेहाइड यहाँ पे एक ही अल्डेहाइडिक ग्रुप है और एक तरफ से तो हाइड्रोजन है विच इज स्मॉल इन साइज, राइट तो एक ही अल्किल ग्रुप है, तो इसके वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, ओके क्योंकि यहाँ पे उसको स्पेस मिलेगी, यहाँ पे देयर इज नो हिंड्रेंस बाय दिस अल्किल ग्रुप, बट इन केस ऑफ कीटोन दिस टू अल्किल ग्रुप विल क्रिएट अ हिंड्रेंस फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, okay they will interfere in the reaction, they will not allow this nucleophile to come and join to this carbon, okay so that is steric effect, that is steric effect. यही लिखा गया है यहाँ पे, there are two alkyl groups in case of ketones which will reduce the polarity, okay which will reduce the polarity, electrophilic which will reduce the electrophilicity of carbonyl carbon more effectively than in aldehydes which only has one alkyl group. Steric effect in the case of sterically अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, जो दो लार्ज सब्स्टिट्यूएंट है कीटोन्स में जो प्रेजेंट है that will hinder the approach of nucleophile to that carbon
बट अल्डेहाइड में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो दैट विल नॉट क्रिएट दैट मच काइंड ऑफ हिंड्रेंस. ओके, next is aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehydes. Okay, benzaldehyde और propanol, अगर हम इन दोनों की बात करें, which one is more reactive, then we call as कि propanol is more reactive. Okay, क्यों? because ये देखो, इसमें भी कार्बन पोलर है, कार्बोनिल कार्बन. ओके, बट इसकी पोलैरिटी जो है ना यहाँ पे, ये रेजोनेंस में चले जाएगी रिंग के अंदर, बिकॉज रिंग के अंदर क्या है, पाई बॉन्ड्स है जो डीलोकलाइज्ड है, राइट. तो ये रेजोनेंस करेगा इन केस ऑफ बेंजाल्डेहाइड, इन केस ऑफ एरोमेटिक अल्डेहाइड, राइट. तो इसके वजह से दिस कार्बन is not readily available for the nucleophilic attack. So that's why aromatic aldehyde are less reactive than aliphatic aldehydes. Okay, आई होप आपको रिएक्टिविटी समझ में आ गई है, बिकॉज इसी पे से हम आगे की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्यों अल्डेहाइड और कीटोन रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. अभी दोनों में से ज्यादा कौन रिएक्टिव है, तो अल्डेहाइड रिएक्टिव है, जिसके पीछे दो रीजन है. पहला रीजन है इंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा रीजन है स्टेरिक इफेक्ट. ओके, इलेक्ट्रॉनिक में कीटोन के पास दो अल्किल ग्रुप होते हैं, दोनों ही अल्किल ग्रुप आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसके वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम हो गई, उसकी पोलैरिटी थोड़ी कम हो गई. ओके, एंड दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक इज नॉट गोना रेडीली अटैक दैट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन चाहिए. ओके, और यहाँ पे क्योंकि आपके अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, वो अभी थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, है ना. बट इन केस ऑफ अल्डेहाइड वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कीटोन से ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा. स्टेरिक इफेक्ट में भी वही चीज है, दो अल्किल ग्रुप है, दोनों ही बल्की ग्रुप होंगे, राइट. तो दैट विल क्रिएट अ हिंड्रेंस, वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे. ओके, अल्डेहाइड के केस में देयर इज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, सो और दूसरा तो हाइड्रोजन ही है विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक कर सकता है. ओके, so I hope that much is clear. So here are some laboratory tests for aldehydes. Okay, identification of aldehyde, we can say if we have two compounds, aldehyde है और ketone है, और हमें बताना है कि उसमें से aldehyde कौन सा है और ketone कौन सा है. So we will do some laboratory test to determine which of the following compound is aldehydes. Okay, so अभी देखो, aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid, ये तो हमको पता ही है. अल्डेहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, राइट. इनके प्रेजेंस में अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट. तो इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अल्डेहाइड जो है दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो अभी they will act as reducing agent towards mild oxidizing agent. Now ketones are not oxidized by mild oxidizing agent. ketone के oxidation के लिए you need strong oxidizing agent, because ketone के पास हाइड्रोजन नहीं है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, है ना. कीटोन के पास, कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे नहीं है. अल्डेहाइड में वो प्रेजेंट है, इसलिए अल्डेहाइड का रेडिली ऑक्सीडाइजेबल है. ketones are not readily oxidizable by mild oxidizing agent. For the oxidation of ketone you need strong oxidizing agent, लेकिन aldehyde oxidize हो जाता है using mild oxidizing agent also. ठीक है, तो aldehyde and ketones they are reducing agents. Remember this thing, they are reducing agents. So अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे aldehyde को? The first test is Schiff test. Okay, इसमें क्या होता है, जो आपका अल्डेहाइड है उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम लेते हैं एंड हम उसमें चीफ रिएजेंट के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं. ठीक है, 2-3 drops of chief reagent are added to the alcoholic solution of aldehydes. उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 3 or 4 minutes पिंक कलर, रेड कलर और मैजेंटा कलर जो होता है ना वो दिखता है. अगर सॉल्यूशन गेट टर्न टू पिंक कलर, रेड कलर और मैजेंटा कलर, दिस कंफर्म कि जो सॉल्यूशन है वो अल्डेहाइडिक सॉल्यूशन है, उसमें अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है. ओके,
So this is the Schiff test. Now what is Schiff reagent? The Schiff reagent is para-rosa aniline hydrochloride. Okay, para-rosa aniline हाइड्रोक्लोराइड. जब आप इस सॉल्यूशन में से SO2 गैस पास करते हो एंड दिस ये पैरारोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये मैजेंटा कलर का होता है. ओके, इसका जो कलर है दैट इज मैजेंटा कलर. तो जब आप इस सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करते हो तो आपको मिलता है Schiff reagent. ठीक है, Schiff reagent. So this reagent is used in Schiff test, which is used to distinguish between aldehyde and ketones. This test is given only by aldehydes. Okay, ketone ये test नहीं देता. So if you want to differentiate between aldehyde and ketone, we can use Schiff test, Schiff reagent. Okay, so समझ में आ गया Schiff reagent. Here is the figure. कुछ ऐसा color होता है, pink color. Okay, कुछ ये पिंक कलर जैसा होता है. दिस इज कलरलेस. पहले कलरलेस था, फिर हमने 2-3 ड्रॉप्स डाले Schiff reagent के. तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आपको अगर चेंज दिखता है, अगर कलर डेवलप होता है, पिंक कलर, रेड कलर, मैजेंटा कलर, तो देन देयर इज अ एल्डिहाइडिक ग्रुप. नेक्स्ट इज टोलन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. अभी टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट इज समथिंग इन विच aldehyde is warm with freshly prepared Tollens reagent. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस इज योर aldehyde. ओके, यहाँ पे acetaldehyde लिया है एंड दिस इज योर Tollens reagent. ठीक है, दिस इज योर Tollens reagent. याद रखना AgNH3/2. दिस इज योर Tollens reagent. तो अभी दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दिस विल कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू एसिड. एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन हो गया टू एसिटिक एसिड. ओके, और ये टोलेंस रिएजेंट में जो आपका सिल्वर है, ठीक है, ये जो सिल्वर है, दिस गेट रिड्यूस टू सिल्वर आयंस. ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर का. ओके, विच इज नोन एज सिल्वर मिरर. अमोनिया एंड वाटर, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स. ओके, so I hope this much is clear to everyone. तो अभी ये टोलेंस रिएजेंट कैसे बना? So this Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution. Ammonical silver nitrate solution. तो अभी देखो क्या होता है. सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में हमने NaOH ऐड किया जब तक हमको ब्राउन कलर का PPT नहीं मिलेगा. दैट ब्राउन कलर PPT इज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड. किसका है वो? सिल्वर ऑक्साइड का है. ओके, सो अभी ये सिल्वर ऑक्साइड का जो ब्राउन कलर का PPT है, हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, NH4OH ऐड करेंगे, और तब तक ऐड करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर का PPT डिसॉल्व ना हो जाए, टू गिव अस अ क्लियर सॉल्यूशन. तो जो क्लियर सॉल्यूशन आपको मिलेगा दैट इज ट्वाइस AgNH3/2OH. दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट. ओके, दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट. तो अभी क्या हुआ है, ये जो टोलेंस रिएजेंट है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने तो एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया. लेकिन एसिटाल्डिहाइड जो है दैट इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया और टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन किया. कैसे? देखो यहाँ पे Ag पॉजिटिव था, Ag पॉजिटिव आयंस थे, और यहाँ पे आपको मिलेगा Ag. तो ये हो गया उसका रिडक्शन. ओके, अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज सिल्वर. ओके, तो क्या करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें टोलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं. एंड टोलेंस रिएजेंट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. तो हमको फ्रेशली ये रिएजेंट इस तरीके से बनाना पड़ता है, जो प्रोसेस यहाँ पे दी गई है. ओके, इस तरीके से हम बनाते हैं टोलेंस रिएजेंट को, और उसको हम एल्डिहाइड में डालते हैं और एल्डिहाइड को थोड़ा सा वार्म करते हैं. तो हमको जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम साइड में एक ब्राइट सिल्वर मिरर जैसा दिखता है at the bottom of the test tube due to the formation of that silver metal because of this Ag. Okay, so aldehydes are oxidized to their carboxylate ion and the reaction should take place in alkaline medium. So this is because we are getting silver
एट द बॉटम सिल्वर मेटल बनता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मिरर। बहुत शाइन, बहुत ब्राइट होता है, ओके, मिरर की तरह दिखता है बिल्कुल। सो दैट इज टोलेंस टेस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि आपने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, उसमें किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट कैसे बनाते हैं ये भी याद रख लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम इसमें अल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन है, अल्डिहाइड का जो मिक्सचर है, उसको हमारे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, ओके। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन aldehyde एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर, तो हमको एक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा इफ अल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके। या फिर अगर रेड प्रेसिपिटेट मिलता है तो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, फाइन। तो ये रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है, दैट इज ऑफ क्यूप्रिस ऑक्साइड। ये किसका होता है, क्यूप्रिस ऑक्साइड का होता है रेड प्रेसिपिटेट। याद रखना, पूछा जाता है कि रेड प्रेसिपिटेट किसका है, तो रेड प्रेसिपिटेट इज ऑफ क्यूप्रिस ऑक्साइड, ओके। तो ये है फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है फिर फेलिंग सॉल्यूशन ना, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, ओके, ऐसे दो सॉल्यूशन से बना है। तो व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज copper sulfate. Aqueous solution of copper sulfate is filling solution A, ओके। और जब आप इस A को फिलिंग सॉल्यूशन B के साथ मिलाते हो, अभी B क्या है, सो दिस इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टारेट, ठीक है। इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टारेट विच इज ऑल्सो नोन एज रोशेल सॉल्ट। तो when we mix equimolar mixture of filling solution A and filling solution B, we get filling solution, a bright red color, ठीक है, because of this cupric sulfate, क्योंकि CuSO4 का ब्लू कलर होता है, ठीक है। filling solution A is blue in color, filling solution B is colorless। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। तो ये फिलिंग सॉल्यूशन हम फाइनली ऐड करते हैं टू अल्डेहाइड और फिर उसको बॉइल्ड करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर बॉइलिंग जो आपका अल्डेहाइड है दैट विल रिएक्ट विद दिस क्यूप्रिक आयंस, है ना, Cu डाई पॉजिटिव से वो रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया है तो हाइड्रोक्साइड आयंस तो होगी ऑब्वियसली, राइट। तो अल्कलाइन मीडियम में टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो अल्डेहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलेट में, आयंस में, है ना। एंड दिस क्यूप्रिक ग्रेट रिड्यूस टू क्यूप्रिस ऑक्साइड। तो ये वहां पे देखो, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। सो दिस इज रेड प्रेसिपिटेट, ओके। ब्राउन रेड, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होता है ये, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किसका है या ब्राउन किसका कलर है, ओके, इन केस ऑफ फेलिंग टेस्ट, एंड वाटर वी गेट, ओके। तो ये चीज याद रखना। सो हियर वी आर नॉट एडिंग एनी इंडिकेटर, हम बाहर से कोई इंडिकेटर ऐड नहीं कर रहे, दिस इज इटसेल्फ अ इंडिकेटर दैट क्यूप्रिक आयंस, जो ब्राउन रेड पीपीटी मिलता है, जो ब्रिक रेड पीपीटी मिलता है ऑफ क्यूप्रिस ऑक्साइड, दैट इज इंडिकेटर। अगर वो बन गया तो अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो नहीं बना तो दैट देयर इज नो अल्डेहाइडिक ग्रुप, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है और इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में हमने ऐड किया, यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में आपने ऐड किया है फिलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फिलिंग सॉल्यूशन बी, तो दैट इज वी कॉल्ड इट एज फिलिंग सॉल्यूशन आपने ऐड किया, ओके। फिर आपने इसको हीट किया, ओके, आपने इसको हीट किया है, बॉइल्ड किया आपने इसको, और बॉइल्ड करने के बाद इफ यू फॉर्म सम रेड पीपीटी ओवर हियर, ठीक है, लेट अ सेकेंड। अगर आपको वहां पे रेड कलर का पीपीटी मिलता है, ब्रिक रेड कलर का पीपीटी मिलता है, तो वी कैन से कि अल्डेहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड दिस इज योर क्यूप्रिस ऑक्साइड, ओके।
तो हम बोलेंगे कि aldehydic group is present. So this thing you have to remember कि यहाँ पे जो cupric ions है पहले उनका oxidation state जो copper ion है पहले उनका oxidation state +2 था. After reduction it is copper positive. Okay, so I hope this much is clear. There are other reactions also which we continue in next lecture, next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.